हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फिट रहने के लिए बेहद ज़रूरी है सही एक्सरसाइज, योगाभ्यास और कुछ टिप्स, और इन्हीं सब बातों पर बातचीत होगी हमारे आज के शो फिट फॉर लाइफ में। आज की इस चूहा दौड़ से भरी जिंदगी में लोग दिखावटी सामान, डब्बा बंद खाना, फॉरेन प्रोडक्ट्स, न जाने किन किन चीज़ों के आदी होते जा रहे हैं। हम माने या ना माने, पर इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जीवन ना के बराबर रह गया है। हम सोचते हैं कि फॉरेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करने से शायद हम सुखी हो जाएंगे, पर नहीं, ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि सुख चैन तो आंतरिक है और ये मिलता है स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब के लिए हम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम कैसे निकालें। अरे भाई, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, अपना हर काम टाइम टू टाइम करते हैं, ठीक इसी तरह अगर आप अपने लाइफस्टाइल और दिनचर्या पर गौर करें तो आप पाएंगे कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लें तो अपनी दिनचर्या में से अपनी एक्सरसाइज के लिए कम से कम 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। पर ज़रूरत है तो थोड़े से दृढ़ निश्चय की। तो क्यों ना आज हम ये निश्चय करें कि फिट फॉर लाइफ में बताई जाने वाली सभी बातों को आप अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएंगे। भाई, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप अपना वादा ज़रूर निभाएंगे और अपने आप को फिट फॉर लाइफ रख पाएंगे। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे गर्दन और गर्दन के दर्द यानी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। समस्या सारी हमारे पोस्चर में है। हम जल्दी जल्दी में अपने बॉडी के पोस्चर की तरफ सही ध्यान नहीं दे पाते। बस आपाधापी लगी रहती है कि ये काम जल्दी से खत्म हो जाए। नतीजा, गर्दन का दर्द। और हाँ, आजकल जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए एरोबिक्स के माध्यम से किस तरह हम गर्दन के दर्द को दूर कर सकते हैं, जानते हैं अपनी एरोबिक इंस्ट्रक्टर से। Today we'll be introducing a new piece of equipment for our conditioning, the rods. Kept right here. But before we begin, let me explain a little about how to handle them. Very important to know the guidelines. Any weight which you want to lift, which is in front of you, you never go down straight like this, because your back is not supported here, it can harm your back. So you squat, support your back, go down and then lift, like that. Similarly, you squat and then keep it down. But now that it's in my hand, let me explain more stuff. As you can see, the weight is equally distributed here, but this is a plain rod. There are some rods which has adjustable things here which you can add and subtract the weight according to your fitness level. So you can adjust the rod, but this is equally distributed, and to use it is very easy, very effective. So I think let's begin. We'll start with a light warm-up for our hands, because we are going to use weight and shoulders, relax them a little, and then go on to using rods. So putting them down right now. All right, I'm Manisha, with me is Gagan and Karishma. Let's take our hands here, wide, shoulder level, straight, holding it there. Just using the weight of our hands, lifting it up and down, up and down. Just warming them up a little, up and down. 4 more, that's 4. And 3, you'll be amazed to see what all we can do with rods. All right, take it forward and back. Forward, 2, 3, 4, and out. Let's forward and out. Can you feel the weight of your hands? Forward and out and forward. Watch the change, what I'm doing. Forward and cross and out. Well done. Cross it forward and out. How are we feeling, guys? And out. Nice weather today. Breezy. All right, 2 more. 2. आर्म स्विंग। अपने पैर खोलिए, अपनी दोनों बाहें सीधी फैला दीजिए और फिर एक पक्षी की तरह हाथों को ऊपर नीचे जर्क दीजिए। इस क्रिया को कई बार करें। मुझे विश्वास है शरीर का संतुलन बनाने में ये क्रिया सहायक सिद्ध होगी। Last one. Okay, now we are doing something called pec deck for our pectoral muscles. And out. And in. And out. Keep going. You're still on your shoulder level. Slow and controlled movement.
In, 2, 3, 4, and out. Keep going, 4. And 3. Are you feeling the weight of your hands? Actually, this is like more like a workout than warm-up. And cross. Same thing, crossing. And open. And cross. The slower the better. Slow and control your movement. In, 2, 3, 4, and out. So what are you doing? You're using the weight of your hands against gravity over here. Nothing else. And very effective. Try it. All right. From the top, 4, 4, 3, and 2. Last one, take it forward and back. That's 4, 2, 3, 4, and out. And 3, and out. 2 more, and out. And 1 more. All right, cross it for 4, cross it for 4, cross. And cross. Last 2. And last one. What are we doing now? Pec decks for the pectoral muscles, then your chest muscles, and out. And in, 2, 3, 4, out. In, and out, and in. All right, crossing it, same thing, that's in. And out. Is anyone shouting in the back? No? Actually, we're warming up. मसाज स्ट्रेच। खड़े होकर दोनों हाथ कोहनी से मोड़ते हुए प्रेशर डालते हुए जोड़ें और फिर आगे की ओर ले जाएं। उसके बाद वापस अपनी पहली अवस्था में आप आ सकते हैं। इसे आप बार बार कीजिए। All right. Taking it up over your head, changing the position of your hands, the palm of your hand, the heel of the palm is facing forward. Hands together. The hands are parallel to your ears. Is everybody in the right position? Let me actually check. Yeah. From here, you bend your elbows down and lift. And down. And lift. Hold it there. Is everyone with me? Let's go. 5, 6. So now you're working the tricep. Let's go. Down, 2, 3, 4, and up. Without actually moving the hand. And up. Nice weather. And up. Down, 2, 3, 4, up. And down. And up. Tricep happening. Down. Up. 4 more. Remember I told you should stretch before and after the workout? That's because you're contracting the muscle as you work them out and you stretch them so that they come to the normal length. Very important. Otherwise you get stiff muscles and muscle imbalance and all sorts of things. And last one, you're going to hold it there. Hold it. Hold it. For 4. And 3. And 2. And pulse it. Push. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. All right, coming up. Coming down. Coming down. So that was tricep. Did everyone feel it? एल्बो। आयरन रॉड को दोनों हाथों से थामते हुए सर से ऊपर रखिए और फिर पीछे की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं और फिर ऊपर ले जाएं। इस क्रिया को आप बार बार कर सकते हैं। So now doing the trapezius muscle. Ready? So what we're going to do is an upright row, lifting it up till here and down. Are we ready, guys? Let's go. 5, 6, 5, 6, 7, go. Up, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4. Your elbows go out as you lift up. And down. And up, 2, 3, 4. Let's slow it down a little. Up, 2, 3, 4. And down. 2, 3. Make sure your elbows and your knees and all your joints like wrists, they're not locked. Last time, up, hold it there. For 5, holding it halfway, passing it up. All right, let's go, push. 2, 3, 4, 5, 6, working the trapezius muscle. 8 more. Hold it. 5, 6, 7,
and 8. All right. Changing the position of your hands, coming back to bicep. Let's do how many of each? 4 of each. Ready? 5, 6, 7. Let's go. That's 4, 3, 2, 1, and down. Bicep happening. 4 and down. All right. 2 more and down. Last one. Hold it. So 5, 6, 7, and 8. Taking it up. Ready? 4 more. 5, 6, 7, and now down and up and down and up. 2 more and up. All right, coming down here. Hold it there and up. Trapezius now. Up and down. Well done. Up and down. Last time. Up and down. That's last time. चेस्ट मसल्स। सीने की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए ये उपयोगी एक्सरसाइज है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से आयरन बार को थामिए और फिर कोहनी से मोड़ते हुए सीने की ऊंचाई तक लाएं, फिर नीचे लाएं। इस क्रिया को भी आप बार-बार दोहराइए। And down. All right. Squatting. Well done, guys. Keeping the weight, the rod here, not on your mat. You have to do a yoga. Rolling it down. All right. So that was bicep. We're stretching our bicep now. Hands out. Stretch, stretch. Tricep stretch. Quickly. One side and the other side. And trapezius is the muscle right here. Stretching. And here. And relax. बाइसेप्स स्ट्रेचिंग। दोनों पैर खोलकर सीधे खड़े हो जाएं और एक हाथ को सर के पीछे लाकर दूसरे हाथ की कलाई से उसे थाम लें और फिर दाएं बाएं खींचें। इसे भी आप बार-बार कीजिए। Hands down, knees down. Now gently cross your right leg over your left leg as you sit down on your left leg, because it makes sure that your back is straight. It's actually very difficult to slouch in this position, so you naturally stay upright like this. Okay? So everybody's knee is one on top of the other, and with this we add a tricep stretch, holding it. Okay, now I have to show you my hands. Right. So these are the position of your hands. Hold it there like that. So that's the knee, one on top of each other. And these are the ears. And she's holding a beautiful tricep stretch here. Gomakasana. Well done, Gagan. Hold it there. Are you feeling it in your tricep? Yeah. Hold it. Hold it, hold it. And it makes sure that you're sitting with your back straight, gives you a wonderful stretch, and you can really sit for a long time. So actually quite easy and beneficial. Can we try the other side? Just switching your legs, like that. Same thing. Knee on top of the other, and other way now. Hands stretching. Just make sure your fingers touch each other. Hold it there. ट्राइसेप्स स्ट्रेचिंग। एक पैर को घुटने की तरफ से मोड़ते हुए वी का आकार बनाइए। दूसरे पैर को भी वैसा ही आकार दें और अपने दोनों हाथों को पीठ की ओर से एक दूसरे हाथों की उंगलियों से पकड़कर खींचें। इस क्रिया को आप बार-बार कीजिए। So practice at home, increase your time limit, and do join us next time. Until then, bye bye. तो फ्रेंड्स, आप ये एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए, डेली कीजिए और सावधानी के साथ कीजिए। चलिए अब एरोबिक्स की दुनिया से चलते हैं योगासन की दुनिया में। पर याद रखिए, जो व्यक्ति बीमार हैं वो हर तरह का आसन नहीं कर सकते।
हृदय रोगी तो बिल्कुल भी शीर्षासन नहीं कर सकते और साथ ही जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। और एक खास बात, कमर व गर्दन में दर्द रहने वालों को आगे झुकने वाले आसन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। याद रखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको नुकसान भी हो सकता है। योगाभ्यास के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। शरीर के तापमान के सामान्य होने के बाद ही स्नान करना चाहिए। और एक बात, अगर आसन करते समय पसीना आ जाए तो उसे तुरंत तौलिए से पोंछ लें। इससे चुस्ती बनी रहती है और साथ ही त्वचा भी स्वस्थ रहती है। ये तो हुई कुछ जनरल बातें जो हमें किसी भी आसन को करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। और अब बात करते हैं गर्दन के दर्द से संबंधित आसनों की। चलिए अपनी योगा एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं गर्दन के दर्द को दूर करने में सहायक आसनों के बारे में। तैयार हैं आप? चलिए। नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विचित्र विषय को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल पेन। आज हमारी यंग जनरेशन भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई है। उसको किस प्रकार ठीक किया जाए, उसका क्या वजह है जिसकी वजह से आज हमारी यंग जनरेशन भी इस बीमारी से पीड़ित होती जा रही है। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार मैं और आप रहते हैं, उसकी वजह से ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सब बीमारी हम शिकार होते जा रहे हैं। इसको यदि हम अपने दिनचर्या में योग की कुछ विभिन्न एक्सरसाइजेस को, आसनों को समाविष्ट करेंगे तो इसके द्वारा बहुत आसानी से निजात पाई जा सकती है। आज हम जिस प्रकार बैठते हैं, जिस प्रकार चलते हैं, उसकी वजह से हम इस बीमारी से पीड़ित हैं। अब साधारण वे में यदि आप योगाभ्यास को अपने जीवन में अपनाएंगे, आज या साधारण स्थिति में आप यदि देखें तो लोग योगाभ्यास करते ही नहीं, एक्सरसाइज करते ही नहीं। उनका रूटीन ही ऐसा हो गया है, सुबह उठते हैं, नहाते हैं और खाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं थक हार के और सो जाते हैं। उनमें आपको जीवन में आनंद के साथ साथ, यदि आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो योगासनों को आपको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। अब जब आप इन बीमारियों से पीड़ित हो गए तो कैसे ठीक करें? इनको ठीक करने के लिए मैं आपके समक्ष में आज कुछ योग की विभिन्न चमत्कारी एक्सरसाइजेस, आसन प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप उसको एक एक मिनट के लिए भी अपने जीवन में उतारेंगे, हर रोज 1 मिनट के लिए, तो कुछ ही समय में इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है मूलाधार चक्रासन। तो करने के लिए आप अपने पैरों को इस प्रकार से खोलें। एक खास बात इसमें ध्यान रखें कि आपके पैरों में इतना डिस्टेंस हो कि आपका घुटना एड़ी के साथ टच हो सके। इस प्रकार से कितना डिस्टेंस आप पैरों में रखेंगे, इतना ही डिस्टेंस आपके पैरों में और हिप में, और इतना ही डिस्टेंस आपके हिप में और पैरों, हाथों में पीछे। आप शुरू करें इस प्रकार से। अब ये देख लें, मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ, मेरे घुटने एक तरफ मुड़े हैं और गर्दन दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ मोड़ा मैंने। इस प्रकार से चलता जाएगा आसन। इसका नाम है मूलाधार चक्रासन। इस आसन को करने वक्त एक बात खास तौर पे ध्यान रखें कि आपको आसन करते हैं आपका हिप आगे आता जाता है। इस प्रकार इस डिस्टेंस को मेंटेन कर लें बार बार, और बार बार अपना हिप को एक स्थिति सेट कर लें। आगे आएगा ही हिप, उसको बार बार पीछे ले जाएं। आप इस प्रकार बैठे और शुरू करें। इसका नाम है मूलाधार चक्रासन। इसको हम एक्सरसाइज नंबर 1 भी बोल सकते हैं। आचार्य केशव देव जी के द्वारा ये आसन बनाए गए हैं। इनका नाम उन्होंने रखा है मूलाधार चक्रासन। इस पूरी एक्सरसाइज का नाम रखा है उन्होंने सप्त चक्रासन। कमर के दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर के लिए अमृत के समान ये आसन है। इस प्रकार करेंगे। ये हुआ मूलाधार चक्रासन। इस प्रकार अब ये देख लें, मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ, मेरे घुटने एक तरफ मुड़े हैं और गर्दन दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ मोड़ा मैंने। इस प्रकार से चलता जाएगा आसन। इसका नाम है मूलाधार चक्रासन। ये एक्सरसाइज नंबर, अब हम 2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2
जैसे पहली एक्सरसाइज में आपके पैर खुले हुए थे, अब दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपके पैर आपस में मिल जाएंगे, ये मिला के रखेंगे और बाकी प्रोसेस सारा सेम है। वही जिस तरफ घुटने उसके ऑपोजिट गर्दन। खास तौर पे ध्यान रखें इस आसन को करते वक्त आपके घुटने दोनों आपस में मिले रहने चाहिए। जिस तरफ घुटने उसके ऑपोजिट गर्दन, इसका नाम है स्वादिष्ठान चक्रासन। बेसिक पर्पस आपका इस आसन को करने का है कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो 32 टुकड़ों में डिवाइडेड है वो एक रिजिड हो जाती है, उसको आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। इस प्रकार वो तभी फ्लेक्सिबल होगी। रीढ़ की हड्डी आपके शरीर में एक स्प्रिंग के समान है, वो स्प्रिंग जितना लचीला रहेगा तो उतना आप निरोगी रहेंगे। उतनी आपकी जितनी स्प्रिंग को लचीला जरूरत है उतनी आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीलेपन की आवश्यकता है। तो ये एक्सरसाइज का बेसिक पर्पस ही यही है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाना। जब उसमें रिजिडनेस आती जाएगी तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल, उनके जो डिस्टेंस है दोनों रीढ़ की हड्डियों के टुकड़ों में वो घटता जाता है, वो एक्स्ट्रा मैटर उनके साथ चिपकता जाता है, उससे उनमें रिजिडनेस आती जाती है। जितना इन एक्सरसाइज को आपको रीढ़ की हड्डी को इस तरह से जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे इस तरह ट्विस्ट करना है उसके, तो वो फ्लेक्सिबल बनती जाएगी। ये मिला के रखेंगे और बाकी प्रोसेस सारा सेम है। वही जिस तरफ घुटने उसके ऑपोजिट गर्दन। खास तौर पे ध्यान रखें इस आसन को करते वक्त आपके घुटने दोनों आपस में मिले रहने चाहिए। जिस तरफ घुटने उसके ऑपोजिट गर्दन, जो नाम है स्वादिष्ठान चक्रासन। जैसे हमने अभी 2 एक्सरसाइज करी, उसी का 3rd नंबर एक्सरसाइज हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसका नाम है मणिपुर चक्रासन। मणिपुर चक्रासन के लिए आप सीधी तरह लेट जाएं, पीठ के बल लेटें, अपने हाथों को सिर के पास रखें यू शेप के अंदर और दोनों पैरों को एक पैर के पहली उंगली और अंगूठे के बीच में दूसरे पैर की एड़ी फंसाएं इस प्रकार से। और शुरू करें। जिस तरफ पंजे उसके ऑपोजिट गर्दन और जिस तरफ गर्दन उसके ऑपोजिट हाथ। दूसरी तरफ। इन 7 एक्सरसाइजेस के अंदर एक खास बात है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर रहे हैं। हर आसन में जिस तरफ घुटने जाएंगे या पंजे जाएंगे उसके दूसरी तरफ गर्दन जाएगी। और हर एक्सरसाइज में एक के बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आ रही है उससे जो जिस रीढ़ की हड्डी के हिस्से पर असर नहीं पड़ पा रहा था, आने वाली एक्सरसाइज के द्वारा उसके अगले एक्सरसाइज पे अगले हिस्से पर उतना असर पड़ता है। आप देख लें इसको। जिस तरफ पंजे उसके ऑपोजिट आपकी गर्दन और जिस तरफ गर्दन उसके ऑपोजिट आपके हाथ। हाथों को भी आप ऊपर नीचे घुमाना है इसके अंदर खास तौर पे। बिल्कुल 7 मिनट तो दीजिए आप खाली। 7 मिनट में आपका कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आप 7 मिनट रोज दें इन आसनों को। उंगली और अंगूठे के बीच में दूसरे पैर की एड़ी फंसाएं इस प्रकार से। और शुरू करें। जिस तरफ पंजे उसके ऑपोजिट गर्दन और जिस तरफ गर्दन उसके ऑपोजिट हाथ। दूसरी तरफ। इसके 2 रूप हैं। आपने एक पहला रूप किया, दूसरे रूप में नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला पैर नीचे। पैरों की पोजीशन चेंज करें इस प्रकार से और वही प्रोसेस शुरू करें। धीरे धीरे बिल्कुल साधारण स्थिति में बिना शरीर पर जोर डालते हुए। जितना आराम से करेंगे उतना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। पूरा हिस्सा उठ रहा है। आपका जो पैर है वो जमीन पे टच है। कमर का मेरा पूरा उठ गया यहाँ तक और ये हाथ, मेरी गर्दन इस तरफ आई है, मेरे हाथ पूरी तरह घुक गए दूसरी तरफ। इसी तरह दूसरी तरफ से। अब जब मैंने इधर घुमाया तो मेरा कमर पूरी इधर से उठ गई। ये हमने आज 3 एक्सरसाइज करी। सब चक्रासन में से 3 चक्रासन किए। इसका नाम था
सबसे पहले मूलाधार चक्रासन, फिर स्वादिष्ठान चक्रासन, दोनों बैठ के थे, और लेट कर उसके जिसके 2 पोज थे वो था मणिपुर चक्रासन। इस सप्त चक्रासन में से 3 चक्रासन हमने किए। यदि इन सप्त चक्रासनों को आप 1-1 मिनट के हिसाब से 7 मिनट रोज कर लें खाली, तो आपके कमर का दर्द चुटकियों में भाग जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने हजारों पेशेंट को ठीक किया है, बिल्कुल चुटकियों में ठीक हो सकता है इन सब चक्रासनों के द्वारा। आप करें और देखें। धन्यवाद। कितने सिंपल आसन और कितने आसान तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने हमें इन्हें करने का तरीका समझाया। वैसे भी इन आसन को करने से पहले एक्सपर्ट की राय ले लेनी बहुत ज़रूरी है, और आई एम श्योर कि इन आसन को करने के बाद आपकी गर्दन की दर्द में ज़रूर फ़ायदा होगा और आपका काम करने का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, उठाइए पेन और पेपर और हमारी आज की हेल्थ टिप्स नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आज हम बात कर रहे थे गर्दन के दर्द के बारे में, तो हमारी आज की टिप्स भी उसी से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा गाय का घी लें, उसमें थोड़ा सा खाने वाला कपूर मिलाएं। जब कपूर घी में पूरी तरह से घुल जाए तो उससे गर्दन की मालिश करें। हल्दी वाला दूध तो सभी दर्दों में हितकर होता है, तो गर्दन में दर्द होने पर आप इसे भी ले सकते हैं। अगर गला खराब हो तो सुबह खाली पेट 1 तुलसी का पत्ता और 2 साबुत काली मिर्च पानी के साथ निगलने से गला ठीक हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन चलते चलते मेरी ये बात याद रखिएगा कि चाहे आप एरोबिक्स करें या योगा या फिर दोनों ही, अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुशहाल रखिए। आप ही की मंगल कामना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।